आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग का मामला लगातार सियासत का मरकज बनता जा रहा है और इसको लेकर धरने के दूसरे दिन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र भवन से राष्ट्रपति भवन तक का मार्च किया। सदर जमहूरिया से मुलाकात कर टीडीपी वफद ने एक मेमोरेंडम सौंपा और इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने सदर के सामने मुल्क की बदहाली का मुद्दा भी उठाया। मरकजी हुकूमत पर मुल्क के सेकुलर स्ट्रक्चर और फेडरल कानून का भी मुद्दा उठाया गया। सभी मामलों में मुदाखलत की अपील करते हुए आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग की गई। In the Bifurcation Act, there are some provisions. It is given as a right to us. Even people are not satisfied at the time. That's why political parties supported us in Rajya Sabha. Further, they demanded special status for 10 years. The then Prime Minister has announced 5 years as special status. Now BJP is playing with our lives and the fate of our future generation. They are affecting the sentiments of Andhra Pradesh. All these things we explained to President of India. We asked him, being the constitution head, he has to direct the government for executing the bill enacted in the parliament, and also the promise given by the then Prime Minister on the floor of the House in the Rajya Sabha. On the basis of that only, bill was passed in the Rajya Sabha at that time. All these things we reminded him. The constitutional head is having responsibility to safeguard the interest of everybody. When government is ignoring, this government is doing divide and rule. Now it is the responsibility of President to unite the country. मुल्क में इंतखाबी माहौल तैयार होता देख हुकूमतें अपने अपने आखिरी दाव चलने लगी है और इसी कड़ी में तमिलनाडु में कुदरती आफात मुतासरों की मदद का ऐलान किया गया। सीएम पलानीसामी ने बीपीएल के 60 लाख गरीब कुनबों को 2000 रुपए की माली मदद देने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि रियासत में गाजा तूफान, सूखे और कम बारिश की वजह से काफी लोग मुतासिर हुए थे और जिसके जद में आने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए थे। दरअसल इस दौरान देही इलाकों में हजारों घर तबाह हो गए थे। हालांकि देर से ही सही, लेकिन हुकूमत को मुतासिरों की याद आई और हुकूमत ने कुछ माली मदद का ऐलान किया। सीएम कुमारस्वामी के ट्रूथ टेस्ट चैलेंज में साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में बीजेपी के रियासती सदर ने जेडीएस एमएलए के बेटे के साथ ऑडियो टेप में आवाज की बात तस्लीम कर ली है। वहीं हुकूमत ने एसआईटी जांच का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीजेपी इस मामले की जांच स्पीकर से कराने का मुतालबा कर रही है। अब ऐसे में येदियुरप्पा समेत कई बीजेपी लीडरान पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। वाज़ेह रहे कि बजट के दिन सीएम कुमारस्वामी ने डिप्टी सीएम की मौजूदगी में ही एक ऑडियो जारी किया था और जिसमें उन्होंने जेडीएस एमएलए के बेटे को करोड़ों रुपए और वजारत का लालच दे रहे थे। और पहले तो येदियुरप्पा ने इस इल्जाम को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में उसे अपनी आवाज होने की बात उन्होंने खुद कबूली थी। इस तरह की खबरें भी आई थी। The whole thing, see, it is something new that's coming up. In accordance with the provisos of the anti-defection law, appropriate action will be initiated. Under IPC, conspiracy, criminal conspiracy. Who is party for this criminal conspiracy? Honorable Chief Minister, who has publicly accepted, yes, I have got this done. Is it not a conspiracy? Tracking, tapping, hearing the individuals or private bodies' conversation, is it not a conspiracy? Is it not a criminal offence? On my view, CM has created this conspiracy. CM has said, yes, I have done it. An individual conversation is made public by the Honorable Chief Minister, who has tarnished the image and respect of this dignity of the speaker. And then he said, I have got it recorded. I myself has got it recorded. I did not sleep throughout the night. How can we subject ourselves to such a person who is also party to this case? See, this case involves two stages. One is of that MLSN, another is on repercussion or on speaker's reputation. That the whole thing is linked. If that is linked, who did all this publicity? Who came before the press? Who made it public?
Who is responsible for the tarnishing of the speaker's image? Not us. तेलंगाना वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। आज इसका इफ्तिताह करते हुए वजीर दाखिला महमूद अली ने इसकी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने केसीआर को अक़लियतों का बड़ा हमदर्द बताते हुए मजीद काम करने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा दौर में रियासत की सरकारी नौकरियों में 7% मुसलमान हैं और जिसे 12% तक करने पर तेजी से काम चल रहा है। इस दौरान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने हुकूमत की मदद से खुदबुर्द हो रहे इमलाक पर बहुत जल्द ही कब्जे का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पहले कोई हुकूमत इस तरफ ध्यान ही नहीं देती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत की मदद से रियासती वक्फ की तस्वीर बदलने जा रही है। खजात के डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया गया है, उससे काफ़ी लोगों को सहूलत होगी। उसके लिए मैं खासतौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को और सीईओ साहब को, तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वहाँ से लोगों को फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलता है, तो हर डिपार्टमेंट को उसी तरह ऑनलाइन किया जाना बेहतर रहता है। और काफ़ी डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो चुके हैं और खजात का डिपार्टमेंट को भी ऑनलाइन किया गया। उसके लिए काफ़ी इन लोगों की कोशिश रही और खासतौर से हमारे सीईओ साहब की कोशिश रही किसी तरह से ऑनलाइन करना। और उसमें हमारे वक्फ बोर्ड के लैंड्स का है या जो भी प्रॉब्लम है, आज गवर्नमेंट हमारे साथ ठहरी हुई है। पहले इससे पहले कोई गवर्नमेंट साथ नहीं रहती थी वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए। आज गवर्नमेंट में पुलिस हो या कलेक्टर हो या आरडीओ कोई भी हो, ऐसी कुछ हरकतें बोलते हो इमीडिएट एक्शन में आ जा रही पुलिस भी और हमारे कलेक्टर, एमआरओ, आरडीओ सब लोग जो है ना, पहले कोई पूछता नहीं था वक्फ लैंड को, जिसको जो समझ में आया कब्जा करके जो है ना बैठ जाते थे और कोई पुरसाने वाला नहीं था। हम एक एक चीज करके इंशाल्लाह ताला जो है ना उसको हासिल कर रहे हैं और गवर्नमेंट की सपोर्ट से और हमारे केसीआर साहब की सपोर्ट, हमारे होम मिनिस्टर साहब की सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह ताला हमारे जितने लैंड मिसयूज हुए तो बड़े से बड़ा आदमी रहता हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो चीज हासिल करके रहेंगे। चाहे हम वक्फ बोर्ड में रहो या ना रहो, इंशाल्लाह ताला ये बीड़ा उठा के रहेंगे हम।